आदरणीय अध्यापकगण, मेरे प्रिय मित्रों, आज कौन सा दिन है? आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी को देश गणराज्य घोषित किया गया। वैसे ही 14 सितंबर के दिन हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोगों की भाषा, जनसाधारण की भाषा, साहित्य संपन्न भाषा हिंदी को देश की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी हमारे देश के अधिकांश लोगों की भाषा है, अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी है। दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की हम देख सकते हैं। हम केरल वाले हिंदी प्रदेश के हैं, फिर भी हम बड़ी रुचि के साथ हिंदी सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा की उन्नति एवं विकास के लिए कार्यरत होना हर हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है। हम विद्यार्थी होते हुए हिंदी भाषा का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। हिंदी के प्रति लगाव रखना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी आशा, हिंदी भारत की बिंदी, हिंदी देश की बिंदी, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। इन चंद शब्दों के साथ एक बार फिर सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को विराम करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। ബഹുമാന്യരായ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റററി ക്ലബിന് കീഴിൽ, ലാംഗ്വേജ് ക്ലബിന് കീഴിൽ ഏതാനും ചില മത്സരങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം പരിപാടികൾ, ഹിന്ദി ന്യൂസ് റീഡിംഗ് പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സായ നമ്മുടെ സാജി സാറും ഫാത്തിമ സൂറ ടീച്ചറും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ അറിയാനിടയായത്. എന്തായാലും ഹിന്ദി ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇതിലൂടെ മക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണല്ലോ, നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഷയോട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്ക്, മറ്റേത് ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും ഏറ്റവും ആദ്യം ഹിന്ദി ന്യൂസ് റീഡിംഗ് പുറത്തിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം. ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ അനുസ്മരിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയമായിരുന്നു ഹിന്ദി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SSLCക്ക് ഹിന്ദിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഹിന്ദി പ്രയാസമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ ഇലകളും കായ്കളും പൂവും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ എഴുത്ത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഹിന്ദി പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കായി കേരളത്തിന് പുറത്ത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തും പോയ സമയത്താണ്. ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും വശമില്ലാത്തതിനാൽ
അന്നൊക്കെ ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് അതിനായി പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. ഹിന്ദി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് IRHSലെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. अस्सलाम वालेकुम. आदरणीय निर्देशक हारिस सर, प्रधान अध्यापक मजीद सर, HSS प्रिंसिपल हिशाम सर, UP सेक्शन हेड शमीला मैम, मोंटेसोरी सेक्शन हेड शफना मैम, मेरे सहाध्यापकों और मेरी प्यारी प्यारी छात्रों सभी को मेरा प्रणाम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. हम जानते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस, इसलिए इसके बारे में जानना हमें से प्रत्येक का कर्तव्य है. हिंदी भाषा बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय IRHS में हिंदी क्लब द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया. LP सेक्शन से हिंदी वर्णमाला डिजाइन का आयोजन किया. UP सेक्शन से वाचन प्रतियोगिता और हिंदी कवि का परिचय और हाई स्कूल सेक्शन से भाषण और पोस्टर बनाना आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन लिया. प्रत्येक सेक्शन से चयनित विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया. विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र बांटे गए. विद्यालय में सभी बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को मेरे नाम पर और हमारे संस्था के नाम पर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं. मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित. भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं. मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं. भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा. देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा. हिंदी भाषा सभी को नमस्कार. इस विशेष समारोह में आप सभी का स्वागत है. आज 14 सितंबर है. इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उत्साह के साथ मनाते हैं. हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है. हिंदी हमारे देश की संस्कृति और मूल्य का प्रतिबिंब है. भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा है, इसलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप
में स्वीकार किया गया था। हमें अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी के माध्यम से ही संस्कृति का ज्ञान है। हिंदी दुनिया की वाचन और समुद्र भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। हिंदी भारत को एकजुट रखती है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी अपना स्थान है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते हैं। आज हम हिंदी की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। यही कारण है हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हटाया जा रहे हैं और हमें ऐसे नहीं होने देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का उसके सही अर्थ में सम्मान करना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी राजभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, सह अध्यापकों, प्यारे मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने हिंदी दिन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा भाषण के विषय में हिंदी दिवस। भारत देश में हर बार 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करते हर साल हम देश दिन के उत्साह से मनाती है। हिंदी पूरी दुनिया में बोलने वाली जाने प्रमुख भाषा मुसैया गई। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यही एक सरल भाषा है। महात्मा गांधी हिंदी भाषा के महत्व बताता है। हिंदी बोलना और समझना मुश्किल नहीं है। भारत की अधिकांश हिंदी भाषा है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के राजभाषा है रूप में स्वीकार गया। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजभाषा है हिंदी। हिंदी भाषा के अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। हमें अपने हिंदी भाषा है नहीं भूलनी ही है। हिंदी भारत की शान है। एकता की परंपरा है हिंदी। हमारा जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। इसने कहकर मेरी छोटी भाषण समाप्त करते हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। तुलसीदास का जन्म सन 1589 को उत्तर प्रदेश के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसीता, पत्नी का नाम रत्नावली था। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम तुलाराम था। गुरु बाबा नरहरिदास जी थे। महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज की दिशा निर्देशक भी है। तुलसीदास के कृतियाँ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठट्ठावली। तुलसीदास हिंदी साहित्य के आकाश के एक चमकील नक्षत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम फातिमा रिफा है। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात और कवित्री हैं और वह आधुनिक हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उपरी वह छायावादी युग के प्रमुख सदांबों में से एक ही हिंदी साहित्य में
हिंदी सदी में महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से ही जाने जाए। उनका जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम कोविद प्रसाद वर्मा था, जो कि बहलकापुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कायद है। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेतों में चला जा रहा था। आमगे आदि बाद किए, ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहरा दे। आम खाना खाने ने खाता, लोग अपने अपने घरों में थे। दुआ उठ रहा था, चौपाए खामेश पड़े थे। नीम सर्दी को रींगते। नमस्कार। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए, ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। उसे याद नहीं उसने कितनी दौर में गेट पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया, तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। दुआ उठ रहा था, चौपाए खामोश पड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। नमस्ते। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए, ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों के बार बार दोहराते हुए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में गेट पार किए, लेकिन जब वह गांव की ऊंटों की गली में आया, तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। धुआ उड़ रहा था, चौपाए खामोश पड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। अस्सलामुअलैकुम। उस समय शाम है गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेते में जल जा रहा था। आमको आदि बंद किए। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए, ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंदा को बार बार दोहराते हुए। सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगता। चौपाई गोश में पड़े थे। नीम सदी के दिन थे। शुक्रिया।